চলছে পরিবারবাদের রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে মুখ্যমন্ত্রী হবে, সাংসদের ছেলে সাংসদ, বিধায়কের ছেলে বিধায়ক হবে, এমন পরিবারতন্ত্রের রাজনৈতিক দলগুলিকে তাড়িয়ে দিতে হবে রাজ্য থেকে। এভাবে বিরোধীতে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি। আজ নির্বাচনী প্রচারে তেলেঙ্গানায় প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে গিয়ে ঝড় তুলেন তিনি। গডকরি আরো বলেন, একটি রাজ্যে কৃষকদের বিকাশ না হলে রাজ্যের উন্নয়ন অসম্ভব। তাই কৃষকদের উন্নয়নে বিজেপি সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। সাথে সাথে তেলেঙ্গানায় বেশ কয়েকটি জাতীয় সড়কের জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও ঘোষণা করে বলেন, এবার বিজেপিকে ভোট দিন, দেখবেন 5 বছরে বদলে যাবে তেলেঙ্गाना। मेरा विश्वास है कि येलारेड्डी और आसपास के क्षेत्रों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनने से ये पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। और इसलिए अभी जो हमारे उम्मीदवार है उन्होंने भी कुछ रोड की मांगे की है। सुभाष रेड्डी जी ने जो रोड की मांगे मेरे पास की है उसकी मैंने नोट कर ली है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप उनको हाथ में ताकत दीजिए, उनको चुन कर दीजिए, उनका विजय बनाइए। उन्होंने जो जो कुछ कहा वो सब रोड मैं बना के दूंगा, ऐसा विश्वास आप सबको देता हूं। రోడ్డు నిర్మాణం ఎంతో అవసరం ఉంది. ఇప్పటివరకు శాంక్షన్ చేసినవి కాకుండా మీరు కనుక సుభాష్ రెడ్డి గారిని మంచి మెజారిటీతో గెలిపిస్తే వారు ఇప్పుడు ఏదైతే అడిగినరో ఆ అన్ని రోడ్లను కూడా నేను మంజూరు చేసి కేంద్ర నిధులతో అభివృద్ధి చేస్తానని మాటిస్తున్నాను. मुझे पता हेलो मुझे विश्वास है कि मुझे विश्वास है कि ये जिले में उद्योगों की कमी है। हमारे विकास के लिए हमारे यहाँ का जो किसान है, गांव गरीब मजदूर और किसान, इसकी प्रगति और विकास करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते हमने वोकल राइस से इथेनॉल बनाया है और पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल का उपयोग हो रहा है। जो राइस स्ट्रॉ है, जिसको हम लोग परली कहते हैं, तनस कहते हैं, उससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने की शुरुआत हुई है। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता होगा। और अब राइस स्ट्रॉ से बिटुमिन बनाने का भी कार्य शुभारंभ हुआ है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी परली से अब हवाई ईंधन बनने की प्रक्रिया की भी शुरू हुई है। तो किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता, ऊर्जादाता से बिटुमिन दाता और बिटुमिन दाता से हवाई ईंधन दाता बनेगा। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और किसानों का विकास होगा। यही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। ఈ ప్రాంతంలో ఇండస్ట్రీస్ లేవని తెలియజేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అన్నదాతలు ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో ఇక్కడ వరి పండిస్తా ఉన్నారో ఆ వరి పొట్టు నుంచి ఇథనాల్, ఎల్ఎన్జీ, సిఎన్జీ గ్యాస్ ఏవైతే తయారు చేస్తారో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ ఇక్కడికి తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. దాని ద్వారా రైతులు అన్నదాతే కాదు, ఊర్జాదాత అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ దాతలు కూడా అవుతారు. దాంతో పాటు విమానాల్లో ఇంధనం కూడా దాంట్లోంచి వరి పట్టుకొచ్చి తీయొచ్చు. ఆ ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడికి తీసుకొని వస్తారని తెలియజేయడం జరుగుతాం. किसी भी राज्य के विकास में उद्योग और व्यापार का महत्व होता है। किसानों के प्रगति के लिए ऊर्जा चाहिए, अच्छा सीड चाहिए और सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। मैं जब सिंचाई का मंत्री था तो कालेश्वरम डैम को मैंने मंजूरी दी थी, पर मुझे इस बात का दुख है कि राज्य सरकार ने जल्दबाजी में जो डिजाइन बनाया था उसके कारण जो समस्या तैयार हुई है, इसने तेलंगाना का बहुत बड़ा नुकसान किया। इस प्रकल्प पर काफी खर्चा हुआ है। इस प्रकल्प को मंजूरी नहीं मिल रही थी, पर बार बार मुख्यमंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी मेरे पास आए और जनता के हित को ध्यान में लेते हुए मैंने मंजूरी दी। पर यह गलत डिजाइन के कारण
जिस समस्या का आपको सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है, उसका मुझे बड़ा दुख और दर्द है। మీ అందరికీ తెలుసు, ఇంతకు ముందు నేను నీళ్ల మంత్రిగా కూడా ఉన్నాను భారత ప్రభుత్వంలో. నేను నీళ్ల మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. అయితే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అప్రూవల్ లో ఏదైతే డిజైన్ చేశారో ఆ డిజైన్ చేసింది కేసీఆర్ స్వయంగా చేయడము, ఇక్కడ వాళ్ళ స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తప్పు డిజైన్ చేయడం జరిగింది. మేము అక్కడ ప్రాజెక్టు మంజూరు చేసినప్పుడు ఈ డిజైన్లను మేము మంజూరు చేయలేదు, ఇక్కడ స్టేట్ వాళ్ళే చేయడం జరిగింది. నేను ఎంతో ఆతృతతోటి మీ అందరికీ మేలు జరగాలని చెప్పి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అప్రూవ్ చేస్తే కేసీఆర్ తప్పిదంతో డిజైన్లు రాంగ్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు మీ అందరికి కష్టం అవుతుందని తెలిసి నాకు ఎంతో బాధగా ఉంది. मेरा विश्वास है कि तेलंगाना का विकास के लिए जब तक यहाँ का किसान समृद्ध संपन्न नहीं होगा, गांव में जाने के लिए अच्छे रोड नहीं बनेंगे, गांव में अच्छी स्कूल नहीं होंगी, अच्छे कॉलेज नहीं होंगे, युवाओं को रोजगार नहीं होगा, तब तक विकास नहीं हो सकता। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को यहाँ के युवाओं की चिंता नहीं है, उनको चिंता है कि उनके बेटे को और उनके बेटी को कैसे रोजगार मिले। ये परिवारवाद की राजनीति है। मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री पैदा होगा, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा होगा, एमपी के पेट से एमपी पैदा होगा, तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे। और యువతకు నైపుణ్యం ఇచ్చి యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తేనే నిజమైన డెవలప్మెంట్ అవుతున్నట్టు లెక్క. కానీ ఇక్కడ దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఏంటంటే తెలంగాణలో ఇక్కడ మీ ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ ఎంతో మంది ఉన్న యువత గురించి మాత్రం పట్టించుకోడు. కేవలం తన కొడుకు, తన బిడ్డ, రేపు వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఇంకా ముందుకు పోవాలనే ఆలోచన తప్ప నిజమైన యువత నైపుణ్యం గురించి ఆయనకు ఆలోచన లేదు. ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం నుంచి ఇంకో ముఖ్యమంత్రి కావాలా, ఎమ్మెల్యే కొడుకు నుంచి ఇంకో ఎమ్మెల్యే కొడుకు ఎమ్మెల్యే కావాలా. కేవలం కుటుంబ పరిపాలన, నియంత్రిత పరిపాలన తప్పితే ఇక్కడ యువత గురించి ఆయన పట్టించుకునే దాఖలాలు లేవు. तेलंगाना के विकास के लिए परिवारवाद को हटाना होगा। मुझे विश्वास है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं पोस्टर चिपकाने का काम करता था, काले दीवार पर चूना लगाने का काम करता था। मेरा कोई बायोडाटा नहीं था, मैं कभी दिल्ली नहीं गया था, पर मेरे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, उस कुर्सी पर बैठने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं पार्टी का अध्यक्ष बना। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आप सबकी पार्टी है। छोटे छोटे कार्यकर्ता इस पार्टी के भविष्य को तय करते हैं। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।